public speaking is the skill of effectively communication thoughts, ideas, and emotions through an audience. It involves not just speaking clearly and confidently, but also engaging listeners through tone, body language, and storytelling. A powerful tool for leadership and influence, public speaking can inspire, inform, and persuade. Whether it's a formal speech, a classroom presentation, or a business pitch, mastering this art boosts confidence and enhances personal and professional growth. Now about SEMS. SEMS Welfare Foundation is a non-profit organization is it dedicated to social impact across various sectors. We focus on education, particularly skill development and entrepreneurship. Through our initiative Dizzy Saksham, we have created training programs in IT, finance, retail, and entrepreneurship impacting over 6,000 individuals. We are currently upskilling inmates in Haryana jails and collaboratively with universities and colleges. We have also partnered with banks to place over 1,500 candidates in jobs. In just a short time, SEMS has established itself as a force for positive change, equipping individuals with skills for employment and promoting women's leadership in various industries. This session is collaboratively organized by DG Samaksh. DG Samaksh is a company that empowers businesses through data and technology. We offer a wide range of services, including IT, software, data science, and research, consultancy, data analytics, and marketing. Now, about the speaker, it's my pleasure to introduce our guest speaker, Ms. Ayushi Ranka. Ayushi is a versatile professional with expertise in technology, digital marketing, and communication. She holds an MBA in Information Technology with Narsi Munji, Mumbai, and a master's in computer applications from Sangam University. With over 5 years of experience and active involvement in social work, Ayushi is also certified public and motivational speaker, having led more than 25 live sessions and served as a zonal level trainer. Her career spans roles in digital marketing, graphic design, and website development, reflecting her blend of creative and technical skills. Now, over to you, ma'am. You can start the session. ओके कहते हैं कि सपने वह नहीं होते कहते हैं कि सपने वह नहीं होते जो सोने देते हैं सपने तो वह होते हैं जो रातों की नींदें उड़ा देते हैं ऐसा ही एक सपना मेरा था पब्लिक स्पीकर बनने का मोटिवेशनल स्पीकर बनने का और साथ ही में ट्रेनर बनने का मैंने अपना सपना पूरा किया इस मीटिंग में आप सब लोग उपस्थित हैं तो मेरे हिसाब से आप लोग सब पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट रखते होंगे तभी आप यहाँ पर आए हैं एम आई राइट और रॉन्ग ऐसे नहीं चलेगा बिकॉज मैंने सारे लाइव सेशन कंडक्ट किए हैं ऑनलाइन सेशन में अगर आप रेस्पॉन्स नहीं देंगे तो मुझ में भी वो नहीं आएगा कि मैं आपके साथ सेशन कंटिन्यू कर सकूं सो प्लीज आप अपने कैमराज ऑन कर रहे हैं और रिप्लाई बराबर दें ओके इन लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है वन बाय वन अपना अपना इंट्रोडक्शन दे अपना नाम अपनी क्वालिफिकेशन और आप कितने साल के हैं मैं जानना चाहूंगी Hello, ma'am. Yes. My name is Sonal and Mishra. I am from Patna, Bihar. Currently, I am living in Delhi and I am pursuing my BBA from Guru Gobind Singh Indraprasth University. And I am working here as an intern in event management. ओके सो आपको पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत ओके तो आपको डर लगता है हेजिटेट होते हैं या आप बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली हेजिटेट तो नहीं होती हूँ बट कॉन्फिडेंटली टॉपिक से रिलेटेड मैं शायद थोड़ा सा हेजिटेट फिर नर्वसनेस आ जाती है मुझ में ओके सो नेक्स्ट और कोई इंट्रोडक्शन देना चाहता है प्लीज अपने मन से दीजिए मैं एक एक का नाम बोलती हूँ प्लीज अपना नाम तो एटलीस्ट आप बता ही सकते हैं आशीष गुप्ता प्रेजेंट तो लगा दीजिए एटलीस्ट प्रेजेंट ही बोल दीजिए कि हाँ मैं हूँ बीबी जानी नो वन ओके इस सेशन के बाद आप अपना इंट्रोडक्शन मुझे दे दीजिएगा स्टार्ट करते हैं प्लीज नेक्स्ट स्लाइड चलाइए आप सभी को इन लोगों ने बता ही दिया वैसे कि मैंने 25+ सेशन कंडक्ट किए हैं हर फील्ड में जाके
चाहे वो मजदूरों के बीच हो, चाहे प्रोफेशनल्स के बीच हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे मेडिकल हो, हर एक फील्ड एंड फैक्टर में मैंने जाके सेशंस लाइव लिए हैं। तो मेरी ऑडियंस अभी तक बहुत इंटरेक्टिव वाली रही है। फर्स्ट टाइम ऐसी ऑडियंस मिली है जो हाँ और ना भी नहीं बोल रही है। तो मैं होप करती हूँ कि लास्ट में सब में थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए और थोड़ा थोड़ा वो बात करने लग जाए, एटलीस्ट अपना नाम तो बता के ही जाए। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जो आज का हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट। या ये क्या दिख रहा है, कोई बता दो, इतना तो बता दो ये क्या दिख रहे हैं प्लीज। अगर बोल के अगर आप नहीं बोल सकते हो तो एटलीस्ट चैट में बता सकते हो। डियर एंड टाइगर। या डियर एंड टाइगर। तो डियर पर आवर 90 किलोमीटर्स भागता है और टाइगर 60 किलोमीटर्स पर आवर भागता है, पर फिर भी टाइगर डियर को खा जाता है। कैसे? क्योंकि डियर में एक हेजिटेशन होता है, एक डर होता है कि कहीं टाइगर मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है। वो रुक रुक के बार बार चेक करता है और उसका वही डर उसे मार देता है, क्योंकि टाइगर उतने में स्पीड कवर कर लेता है। तो वही डर हमारे में भी है, पब्लिक स्पीकिंग का डर कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैंने फंबल कर लिया, या मैंने कोई वर्ड गलत बोल दिया, या मुझे कुछ आया नहीं, या फिर मैंने एक्सप्रेशन जेस्चर्स अलग दे दिए, तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, हंसेंगे। ये डर हमारे में भी है। नेक्स्ट प्लीज। मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे जेन्युइनली किस किस को पब्लिक स्पीकिंग में एक्चुअली इंटरेस्ट है। हैंड रेस कर दीजिए, एटलीस्ट हैंड रेस तो कर ही सकते हैं ना। ओनली वन। ओके। फैक्ट्स। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज कॉल्ड ग्लोसोफोबिया। जिनको भी पब्लिक स्पीकिंग यानी लोगों के सामने अपने विचार रखने से डर लगता है, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में ग्लोसोफोबिया बोलते हैं। 3 आउट ऑफ 4 पीपल और 75% सफर फ्रॉम स्टेज फियर। मतलब ये बहुत कॉमन चीज है, यानी 4 में से 3 लोगों को ये चीज होती ही है कि वो लोगों के सामने बोल नहीं पाते। सो इट्स वेरी कॉमन। बट इसका सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, वो हम इस वर्कशॉप में सीखेंगे कि किस तरीके से हम डील कर सकते हैं। योर डिलीवरी मैटर्स मोर देन योर कंटेंट। काफी टाइम क्या होता है ना कि हमारा जो वे ऑफ द एक्सप्लेनेशन होता है, वे ऑफ द प्रेजेंटिंग होता है, वो मैटर करता है। हमारे साथ हमारा एक और एम्प्लॉई है, अगर मैं बॉस को जाके कुछ बोलती हूँ, बॉस के माथे में गुस्सा नहीं है, सिर में उसके गुस्सा नहीं है, पर साथ वाला एम्प्लॉई अगर उसको कुछ जाके बोलता है सेम चीज, वो उसके दिमाग में घुस जाता है या वो उसकी बात मान लेता है। क्यों? क्योंकि उसका वे ऑफ द प्रेजेंटिंग मेरे से ज्यादा अच्छा है, वे ऑफ द एक्सप्लेनेशन मेरे से ज्यादा अच्छा है, इसीलिए घुस जाता है। तो काफी टाइम ऐसा होता है कि जो हम जिस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं अपनी चीज को, वो इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन हमारा कंटेंट। नेक्स्ट प्लीज। इंपॉर्टेंस। किसी भी चीज को सीखने के लिए उसकी इंपॉर्टेंस जानना जरूरी होता है कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तभी हम उसकी वैल्यू करते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग की क्यों इंपॉर्टेंस है वो जानना जरूरी है। फर्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हम लोग बात करने का तरीका सीख लेंगे, हम अपने विचारों को रखने का तरीका सीख लेंगे, हमारे माइंड में जो थॉट्स चलते हैं वो प्रेजेंट करने का तरीका सीख लेंगे, तो हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन जाएंगे। लाइक लोग हमारी बात सुनेंगे, हम में रुचि दिखाएंगे, हम में दिलचस्पी दिखाएंगे, तो वही इफेक्टिव हम कम्युनिकेटर बन जाएंगे। सेकंड इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अगर हम अपनी बात रख रहे हैं, लोग समझ पा रहे हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे, समझ लेंगे और समझा देंगे लोगों को। थर्ड इज ऑडियंस इम्पैक्ट। अगर मुझे मौका मिलता है लोगों के बीच में जाने का, लोगों से बात करने का, लोगों को समझाने का, तो लोगों के मन में मेरे लिए भी एक अच्छी छवि बनती है, एक इमेज क्रिएट होती है कि यार ये बंदी बहुत सही है, ये बहुत अच्छी नॉलेज वाली बंदी है। तो एक अच्छा ऑडियंस इम्पैक्ट भी क्रिएट होता है। इन्फ्लुएंस लीडरशिप। जब मैं अच्छे से लोगों को समझा पा रही हूँ तो मैं उनसे काम भी बहुत अच्छे से करवा सकती हूँ, मैं उनको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, तो एक लीडरशिप क्वालिटी भी मेरे में जनरेट होगी। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। अगर ऐसे प्रोग्राम्स में जाने का मौका मिले, ऐसे लोगों के ग्रुप में जाने का मुझे मौका मिले जहां पे मैं मेरी बात रख रही हूँ, वो समझ रहे हैं, तो वो मेरे साथ और टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, मेरे साथ और रहना चाहेंगे, मेरे साथ काम करना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज में मुझे और ज्यादा मिलेगी। नेक्स्ट इज क्लैरिटी ऑफ मैसेज। काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आ जाता है, पर हम बात करने में ही खिचड़ी बना देते हैं, लाइक उस सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज है कि हमारा जो मैसेज है, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हम सामने वाले तक पहुंचा सके। इज इट क्लियर? कुछ अगर आपको डाउट्स हैं तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, क्वालिटीज ऑफ गुड स्पीकर।
जिसने हैंड रेस किया था, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि एक अच्छे स्पीकर की क्या क्वालिटीज हो सकती है आपके अकॉर्डिंग। प्लीज गाइस, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. या सो जिन्होंने हैंड रेस किया था कि जिसको पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट है, प्लीज मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि एक अच्छे स्पीकर की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, उसमें क्या क्या अच्छा होना चाहिए कि वो गुड स्पीकर बन सके। प्लीज वो बताएंगे। इंट्रो गर्ल जिसने इंट्रो दिया था। यस मैम। या मैम, उसमें प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ओके अपने बात को रखने की आई डोंट नो व्हाट दैट इन इंग्लिश में उसको क्या क्षमता होनी चाहिए ओके ताकि दूसरे समझ सके। ओके दैट्स इट। ओके प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। या फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये कोट हम सबने सुना होगा कि हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो हमारे लुक से होता है। वो एक्चुअल में पब्लिक स्पीकिंग में एप्लीकेबल होता है, क्योंकि जब आप कहीं किसी इवेंट में जा रहे हैं या फिर स्पीकिंग के मतलब कोई भी, तो लाइक वो लोग आपको क्यों सुनेंगे? आप पहले उस लायक होंगे तो वो आपको सुनेंगे ना। तो फर्स्ट अपना इंप्रेशन पड़ता ही कपड़ों से या फिर आपके लुक से पड़ता है। अब आप मेरा एक एग्जांपल सुनना। मुझे बुलाया है किसी के फ्यूनरल में, किसी की मतलब डेथ हो चुकी है और उनके लिए दो शब्द बोलने हैं, और उसमें अगर मैं शादी के कपड़े पहन के जाती हूँ तो बहुत ऑकवर्ड एक एक माहौल बन जाएगा कि ये शादी के कपड़े पहन के फ्यूनरल में कैसे आ गई है। तो लाइक इसको ये कह सकते हैं, जैसा देश वैसा भेष। अगर आपको किसी कॉर्पोरेट इवेंट में बुलाया है एज ए स्पीकर, तो वहां पे हमें फॉर्मल्स कैरी करके जाना है। अगर किसी शादी में आपको एज ए होस्ट बुलाया है, तो वहां पे शादी के कपड़े पहन के जाना है। और किसी की डेथ हो गई है और वहां पे अगर आपको एज ए स्पीकर बुलाया या एज ए जो भी बुलाया है, तो आपको वैसे कपड़े पहन के जाने हैं। तो बेसिकली ये होता है। और बाकी अगर अपन करें एज ए स्पीकर, तो जैसे कॉर्पोरेट इवेंट्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, इनमें अपने को फॉर्मल ही कैरी करके जाना है। तो ड्रेस कोड सबसे ज्यादा मैटर रखता है, क्योंकि फर्स्ट इंसान आपका दिमाग में यही डाल के कि इसको सुनना है या नहीं सुनना है, वो आपके ड्रेस कोड, आपके ये इन सब चीजों से ही जज कर लेता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जेस्चर्स। 70% of message comes from your words. 36% of the message comes from your voice. 57% of message comes from your नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? आपके हाव भाव, आपके ये जो चलते हैं जेस्चर्स, आपके एक्सप्रेशन, ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो एक तो ये है कि हम बचपन में जो गांधी जी पे निबंध बोलते थे, वो ऐसे खड़े होके बुक लेके, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, उनको बापू बोलते हैं, वो राष्ट्रपिता थे, ये वाला चीज हो गया। और एक इसी को मैं इफेक्टिव तौर पे कि महात्मा गांधी जो थे उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, इस तरीके से आपको प्रेजेंट करी हूँ, तो वो आपको पहले वाला जो तरीका होगा ना वो बोरिंग लगेगा, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। बट सेकंड वाला जो तरीका होगा ना, उसमें आप सोचोगे ये क्या और नया बताने वाली है, थोड़ा आपके अंदर एक वो एक्साइटमेंट पैदा होगी कि ये नेक्स्ट क्या बोलने वाली है उनके बारे में, और इस तरीके से। तो आपके जो जेस्चर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपकी पब्लिक स्पीकिंग में, आपके स्पीचेस में, आपके लाइक प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट प्लीज। ये मूवी किस किस ने देखी है? अब तो हैंड रेस कर दो, किसी ने देखी है या नहीं देखी है वो तो बता दो। नो वन? ओके। एनिमल मूवी का ये सीन है। बॉबी देओल जिन्होंने अपने करियर में कई सारी मूवीज करी, पर किसी मूवी में उनको इतनी तारीफ नहीं मिली जितनी इस मूवी में उनको तारीफ मिली। क्यों? बिकॉज उनके जेस्चर, उनके एक्सप्रेशन, क्योंकि इस मूवी में वो बोल नहीं सकते थे, उन्होंने एक गूंगे का कैरेक्टर किया, पर उनके एक्सप्रेशन, उनके जेस्चर्स इतने शार्प थे कि लोगों ने रणवीर कपूर से ज्यादा भी इनकी तारीफ की कि बॉबी देओल ने क्या रोल किया है। तो लाइक जेस्चर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको ये एग्जांपल इसके थ्रू देना चाह रही हूँ। नेक्स्ट। अगर आप किसी भी पब्लिक सॉरी, प्रीवियस स्लाइड में जाइए। हाँ, आप किसी भी पब्लिक स्पीकिंग के इवेंट में जा रहे हैं तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए जेस्चर के रिगार्डिंग? एम्प्टी योर हैंड्स एंड पॉकेट्स। अगर मेरे हाथ में ये फोन है, मैं आपके सामने अभी प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, मैं आपको विजिबल हूँ, मैं बार बार इस फोन से खेलूं, ऐसे करूं, फिर मैं आपसे बातें करते रहूं, आपका जो ध्यान है वो मुझसे हटके इसके ऊपर जाएगा, आपका कंसंट्रेशन मुझसे हटके बार बार इस पे जाएगा कि इसके फोन पे लाइन बना हुआ है या फिर ये ऐसे लाइक। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे हाथ में उस टाइम पे कुछ नहीं होना चाहिए, इवन सिंगल पेन भी नहीं होना चाहिए।
और हमारे पॉकेट्स भी एम्प्टी होनी चाहिए। कितनी बार आपने देखा होगा कि मतलब बहुत लोग होते हैं जो यहाँ पे पेन रख लेते हैं, हैंकी रख लेते हैं, पेपर रख लेते हैं, फिर उनकी पॉकेट इतनी मोटी मोटी हो जाती है। तो हमारा क्या उससे ना फोकस हट जाता है, मतलब पब्लिक का फोकस हट जाता है। वो ये सब चीजें नोटिस करते हैं कि उसने रेड कलर का कुछ लगा रखा है या उसकी पॉकेट इतनी मोटी हो रही है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमारी पॉकेट्स में कुछ नहीं होना चाहिए, कीज नहीं होनी चाहिए। कभी कभी चाबी बज जाती है, लाइक जेस्चर्स करते करते चाबी ठक बज रही है, इस तरीके का डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए हमारी पॉकेट्स एम्प्टी होनी चाहिए और हमारे हैंड्स भी एम्प्टी होनी चाहिए। और सेकंड इज हैंड्स फ्री। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जाके यूं खड़े हो जाते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी यूं हो जाते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि हम लोगों को कुछ ज्यादा ही आता है लोगों से, तो हम लोग जाके ये पोस्चर दे देते हैं। तो हमें कभी भी ये ऐसे पोस्चर्स नहीं देने, हमें हमारे हैंड्स को फ्री रखना है, हमें हमारे हैंड्स को ऐसे लाइक मूव करते रहना है। थर्ड इज टॉक। कभी कभी क्या होता है ना कि हमसे स्पीकिंग के दौरान लोग बात करने की कोशिश करते हैं, इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं, उनको अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चनिंग करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें एट ए टाइम वन पर्सन को खड़े करके उनसे एक ही जन से बात करनी है, मोर देन मतलब ज्यादा लोगों से बात नहीं करनी है। एक बार एक पर्सन का आंसर दिया, उसको बिठा के फिर दूसरे पर्सन कोई खड़ा होके क्वेश्चन पूछे तो उसको आंसर देना है। तो ये एक डिसिप्लिन होता है बेसिकली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी तक किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। अगर आपको बोलने में शर्म आ रही है तो आप मैसेज पे भी पूछ सकते हैं, या फिर आप ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पोस्चर्स। पोस्चर्स में हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें स्टेज पे जाके एक स्टैंड पॉइंट लेना चाहिए, एक जगह पे सीधे खड़े होना चाहिए। सीधे खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे शोल्डर झुका के यूं खड़े हो जाइए, ज्यादा ही शोल्डर ऐसे तान के हाँ भाई मैं ही हूं मैदान में, आ जाओ सब, इस तरीके से नहीं होना है। नॉर्मल जाके नॉर्मल शोल्डर रखने हैं, नॉर्मल जाके खड़ा होना है। थर्ड इज ग्रेस के साथ में। जब आप किसी भी इवेंट में जाते हो या फिर किसी भी लाइक आपको प्रेजेंटेशन के लिए भी भेजा जाता है, तो दैट टाइम ना आप वहां के हीरो हीरोइन बन जाते हो, सबका सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन जो होता है वो आप होते हो। तो लाइक आपको उस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप सुस्त होके यूं करके मुंह लटका के आगे जाके खड़े होगे तो लोग आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आपको एक ग्रेस रखना है, आपके वॉक में भी ग्रेस करना रखना है, और आपके लाइक पूरे बॉडी में एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि लाइक या अब मैं आया हूं तो मैं कुछ अच्छा दे के जाऊंगा तुम्हें, लाइक वो आपका एटीट्यूड होना चाहिए। नेक्स्ट इज हैंड्स लूजली रेस्टिंग ऑन वन अनदर नियर। आपका जो मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, कुछ लोग यूं बांध देते हैं, ये इस तरीके से नहीं होता है। एक पोस्चर होता है ये यूं। आपने कितनी बार एलोन मस्क को देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी को देखा होगा, वो अपने हैंड्स को ऐसे रखते हैं। इसको रखने का साइंटिफिक रीजन भी है कि एनर्जी वगैरह से रिलेटेड कोई रीजन भी है, और उसके अलावा भी जब आपके हैंड्स इतने ऐसे फ्री यहाँ पे बेल्ट के यहाँ पे रहते हैं तो आप है ना जेस्चर्स देने में बहुत इजी रहते हो कि भाई मैं ऐसे कहना चाह रहा था, मैं वैसे कहना चाह रहा था। आपका हैंड्स फ्री रह रहे हैं तो आप कुछ भी फिर ये ऐसे जेस्चर्स दे सकते हो। अगर आप यूं कर लोगे तो आपका ये एक वो बंद जाएगा, तो वो खुलने में फिर टाइम लगेगा और जेस्चर्स भी आप बराबर नहीं दे पाओगे। तो एक ये चीज बहुत अच्छी है, आप ये चीज कर सकते हो जब आप पब्लिक स्पीकिंग में जा रहे हो। डोंट्स। कितने ही लोग होते हैं जो स्टेज पे जाके माइक को देख, माइक के सामने यूं ऐसे झूमते रहते हैं, यूं ऐसे। बहुत लोगों की आदत होती है, कितने लोगों की आदत होती है, जब वो पढ़ते हैं तभी भी वो ऐसे आगे पीछे होते हैं, वैसे ही वो माइक के सामने भी यूं ऐसे झूमते रहते हैं, स्विंग करते रहते हैं। तो वैसे हमको झूमना नहीं है। रेस्टिंग वाइल स्पीकिंग। बहुत लोग होते हैं जो कि कोई भी मतलब टॉपिक उनको दिया जाता है, स्पीच चल रही होती है, तो वो बीच बीच में रुक जाते हैं, उनको याद नहीं आता या वो भूल जाते हैं, या फिर वो हाँ ऐसा हुआ था, इस तरीके से वो बोलते हैं, जबकि ये सही तरीका नहीं है स्पीकिंग का। नेक्स्ट इज केज लोयन। केज लोयन यही होता है बेसिकली कि अपने हाथों को ऐसे बांध देना यूं। तो हमें ये नहीं करना है। टर्निंग टुवर्ड्स द डाइस। हम कितनी बार पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, अरे यार अपनी ऑडियंस आ गए हैं, वो लोग अपन को देखना है और अपन पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हैं। तो इस तरीके से पीछे भी नहीं मुड़ना है। हाइडिंग बिहाइंड द पोडियम। काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारी हाइट छोटी होती है और हमें पोडियम पे बोलने के लिए मतलब बुला लिया जाता है। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर पोडियम हमसे बड़ा है तो हम भूत या बाबा बनने से बेटर है कि माइक को आगे लेके आगे आके बोल ले, या फिर पहले ही जाके उन लोगों को बोलते कि मेरी हाइट छोटी है तो मेरे लिए स्टूल की अरेंजमेंट कर दे।
तो इस तरीके से हमें ध्यान रखनी है ये सारी बातें ड्यूरिंग द पब्लिक स्पीकिंग, जब हम लोग कभी कहीं करने जा रहे हैं तो। नेक्स्ट प्लीज, आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई कांटेक्ट में ऐसा होता है कि पब्लिक जब अपने को देखने आई है तो वो चाहती है कि अपन भी उनको देखें। तो हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ईच एंड एवरी सिंगल, हमें इतना कॉन्फिडेंस, एनी क्वेरीज? ओके, तो हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम हर तरफ देखें। आई कांटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट बेसिकली हम लोग जो तरीका यूज करते हैं वो सी का होता है कि हम आगे से स्टार्ट करते हैं पब्लिक को देखना, फिर पीछे जाके फिर वापस आगे तक की पब्लिक को देखते हैं। अब ये क्या प्रैक्टिकल सेशन होता तो मैं आपको एकदम पूरा प्रैक्टिकली करके बताती, बट अभी के लिए इतना कि हम लोगों को जब हम पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हैं तो उन लोगों से आई कांटेक्ट करना है। एंड पब्लिक स्पीकिंग ही नहीं, अगर हम किसी छोटे ग्रुप में भी बैठ के बात कर रहे हैं तो हमें हर एक पर्सन को देख के वो बात करनी है। यूं नहीं कि हम 2 पर्सन को देख रहे हैं और 3 को अवॉइड कर रहे हैं, तो वो फिर अपने आप को फिर लाइक समझते कि यार हम लोग यहाँ पे क्यों ही बैठे, हम टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं अपना। वो लोग अपने आप को समझने लग जाते हैं कि हम लोग नहीं है इस कन्वर्सेशन में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ईच एंड एवरी पर्सन को देखना है, ट्राई करना है। और बड़ा ऑडियंस हो तो आपको फिर वो सी जो मैं आपको बता रही हूँ कि आगे से लेके पीछे तक इस तरीके से देखना है। ओके, नेक्स्ट प्लीज, वॉइस मॉड्यूलेशन। लर्न हाउ टू यूज दीज पीरियड्स, कोमा, एक्सप्लेनेशन, पंक्चुएशन और कोट्स। ये सब चीजें हमने बचपन में कहीं ना कहीं पढ़ी है, तो इसका यूज कैसे करना है मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए प्लीज। ये कोई बोल के बताएगा प्लीज? एनीवन? इंट्रोडक्शन गर्ल प्लीज। Yes, ma'am. Please introduce yourself. Let's eat, mom. Let's eat, mom. ओके, तो इन दोनों का ही मतलब अलग अलग होता है। एक बोल रहा है कि मॉम को खाना, और एक बोल रहा है कि चलो मॉम खाना खाते हैं। लाइक तो देखो ये इन दोनों का कितना डिफरेंस पड़ा। लाइक एक एक सेंटेंस क्या बोल रहा है कि मॉम को खा लेते हैं, और एक बोल रहा है कि मॉम को चलो मॉम खाना खाते हैं। तो वही है कि जहां पर कोमा होता है हमें कोमा के लिए स्पेस देना, रुकना, बोलना, किस तरीके से बोलना, वो सब चीजों का ध्यान रखना है। वॉइस मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या होता है कि जिस चीज को हमें हाईलाइट करना है हमें उस चीज पे ज्यादा जोर देना है। अभी मुझे कोई स्वच्छ भारत अभियान पे कुछ निबंध बोलने के लिए बोल रहा है, ठीक है, मैं बाकी सारी बातें तो लाउडली बोल रही हूँ, स्वच्छ भारत अभियान आते से मैं धीरे हो जाती हूँ, तो वो चीज सही नहीं है। और मैं बाकी सारी लाइन धीरे वॉइस में बोल रही हूँ, पर स्वच्छ भारत अभियान जैसे ही आया मैंने उसको हाई नोट पे बोला, तो वो होता है। अब मैं एक चीज बताती हूँ, एक एग्जांपल मैं मेरे मन से क्रिएट कर रही हूँ। रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया, तो अब इसमें मैंने हाईलाइट किसको किया? राम को। अब वापस बोल रही हूँ, रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया, तो इसमें मैंने हाईलाइट किसको किया? रावण को। एक और बार, रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया, तो मैंने इसमें हाईलाइट किसको किया? सीता को। तो वैसे ही अगर हमें कोई टॉपिक मिलता है स्पीच, बेसिकली स्पीचेस में, कि भाई स्वच्छ भारत अभियान पे बोलना है, तो जब भी स्वच्छ भारत अभियान आता है तो हमें उसको उसका मॉड्यूलेशन हाई लेके जाना है। हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसका वॉइस मॉड्यूलेशन हाई जाएगा। तो बेसिकली यही होता है वॉइस मॉड्यूलेशन। अगर ये स्पीच में रहता है तो लोगों को सुनने में मजा आता है, पब्लिक को सुनने में मजा आता है, वो इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। एंड एक गुड स्पीकर की ये क्वालिटी होती है कि वो वॉइस मॉड्यूलेशन पे पूरा ध्यान रखे। नेक्स्ट प्लीज, लैंग्वेज। यूज द लैंग्वेज एज एप्रोप्रिएट टू द ऑडियंस। अब मैं किसी साइंस कॉलेज में जा रही हूँ, या मैं किसी भी कॉलेज में जा रही हूँ जहां पर दूर दूर तक उनको संस्कृत नहीं आती, और मैं वहां जाके संस्कृत में अपना भाषण दे रही हूँ, वो लोग इंटरेस्ट लेंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको आती नहीं है। मैं उस लैंग्वेज में अगर उनको भाषण दे रही हूँ तो वो सुनेंगे ही नहीं, उनके तो सिर के ऊपर से जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा सेशन जहां पर भी हो या फिर हमारा प्रेजेंटेशन जहां पे भी हो, हमें उसके बारे में पता करना है कि वहां पे ऑडियंस कौन सी बैठने वाली है। ये प्रोग्राम होने से पहले जब मेरी बात हुई थी मैम से, तो मैंने बोला मैम मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ, नॉट प्योर इंग्लिश, नॉट प्योर हिंदी, बिकॉज मैंने अभी तक जितने भी सेशन लिए हैं वो मेरे इंग्लिश में रहे हैं। तो मैं अगर इंग्लिश में प्रिपेयर करती भी हूँ तो भी मैं कहीं ना कहीं हो सकता है लेक कर जाऊं। तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था, तो उन्होंने बोला कि इट्स ओके मैम, कंफर्टेबल, आपकी ऑडियंस ऐसी रहेगी जिसको इंग्लिश समझ में आती हो। तो आप लोगों को भी ये ध्यान रखना है कि जहां पर भी आप लोग जा रहे हो वहां पे ऑडियंस को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है। एंड एप्रोप्रिएट
यानी कि जो भी अपनी गाली वाली एंड ये सब चीजें यूज नहीं करनी है कभी भी पब्लिक स्पीकिंग में। भड़काऊ भाषण अपने को कभी नहीं देना है, बिकॉज हम लोग गुड स्पीकर हैं। तो हम लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। आइडियली वन शुड नॉट यूज मिक्स मोर देन 2 लैंग्वेज। अब मैं राजस्थानी हूँ, तो अब मैं आपको हिंदी, इंग्लिश, राजस्थानी, मल्टीपल लैंग्वेज, अगर 4-5 लैंग्वेज एक साथ बोलूंगी तो आप लोग बोलोगे ये क्या खिचड़ी बना रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो लाइक ज्यादा से ज्यादा आप 2 लैंग्वेज मिक्स करके बोल सकते हो, हिंदी इंग्लिश या फिर हिंदी और मारवाड़ी, तो एक बार फिर भी इंसान को समझ में आ जाएगा। बट आप मोर देन 2 लैंग्वेज बोलोगे तो वो एक खिचड़ा बन जाएगा, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। सो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्लीज, स्माइल। स्माइल इज योर ब्रांड लोगो। आपको जाके वहां पे डिप्रेशन में ऐसे खड़े नहीं हो जाना कि यूं, मतलब कि मेरे को ही टेंशन है, स्पीच मेरे को ही देनी है, पूरा प्रोग्राम मेरे पे ही है, वो वाला नहीं आना चाहिए। आपको एक जाके पॉजिटिव स्माइल देनी है। स्माइल मीन्स कि अपने दांत भी नहीं दिखाने, एक स्माइल नॉर्मल जेन्युइन सी स्माइल कि भाई हाँ, लोगों को लगे कि हाँ ये बंदी है, ये आई है, कुछ ना कुछ अच्छा बोल के जाएगी। सो या स्माइल होनी चाहिए, एक पॉजिटिव स्माइल होनी चाहिए, जिससे कि सामने वाला अगर बुरे मूड में भी है ना तो भी वो सोचे कि नहीं, इसको सुनते देखे कुछ ना कुछ मिलेगा नया। नेक्स्ट प्लीज, हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। फर्स्ट इज ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। आपको जहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लाइक कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, आपका कॉर्पोरेट फील्ड हो गया, कोई भी आपका वर्क प्लेस हो गया, आपके दोस्तों के बीच में कुछ, या फिर आपको कोई सोशल इवेंट में, जहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करना है। मेरा एग्जांपल लेती हूँ, मैंने कभी लाइव ऑनलाइन सेशन नहीं लिया, बट मुझे इन्होंने बोला, मैंने 1 मिनट भी नहीं सोचा, मैंने हाँ कर दी कि हाँ भाई चलेगा, बिकॉज मेरे को आगे जाके ये चीज करनी थी। अगर मुझे अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं क्यों एक्सेप्ट ना करूं, तो मैंने वो चीज को एक्सेप्ट करा। तो आपको ऐसे भूख होनी चाहिए कि हाँ लाइक जहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेनी है। और अगर आपको नहीं भी मिल रही है, भाई वो आपको ऑफर नहीं कर रहे, पर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा इवेंट होने वाला है जिसमें स्पीकर्स की नीड है या जिसमें प्रेजेंटेटर्स की नीड है, तो आपको वहां जाके आगे से बोलना है कि मैं भी बोल सकती हूँ क्या 2-5 मिनट, अगर आपके पास में टाइम हो तो। इससे क्या होगा ना, आप फर्स्ट टाइम बोलोगे, बाई चांस आप अटक गए, आपको याद नहीं रहा या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई, सेकेंड टाइम भी सेम सीन हुआ, थर्ड टाइम भी सेम सीन हुआ, पर फोर्थ टाइम जब आप वहां पे जाओगे और बोलना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी चीजें सुधरेगी, आप में इंप्रूवमेंट आएगा, आपकी ये स्किल्स शार्प होगी, आपको टाइम मिलेगा, आपको लाइक प्रैक्टिस करने के लिए एक वो मिल जाएगा। तो आप लोगों को जितना हो सके ग्रैब करनी है अपॉर्चुनिटीज को। सेकेंड इज एक्सेप्ट फेमिलियर सब्जेक्ट। अगर आप नए नए स्पीकर बन रहे हैं तो कभी भी अपना कंफर्ट जोन ना छोड़े। आपको लाइक जैसे आप सीएस के बंदे, कंप्यूटर साइंस के बंदे, तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स में अगर आप बोल सकते हैं इजीली, तो आप वो चूज करें, ना कि जाके आप संस्कृत चूज कर ले। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हम लाइक हाँ हम लोग तो कर लेंगे, हाँ मैं कर लूंगा, उसमें हम ले तो लेते हैं, बट अगर वहां पे जाके एक शब्द भी भूल जाते हैं, रट्टा मार के जाते हैं और भूल जाते हैं, तो हमारी फिर वहां पे पोपट हो जाती है और हमें बैठना पड़ता है आके। इससे बेटर आप ऐसा फेमिलियर सब्जेक्ट चूज करें जिसमें आपको पहले से ही महारत है। तो क्या होगा उससे कि लाइक अगर मैं भूल भी जाती हूँ कोई वर्ड, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से उस चीज को डिस्क्राइब कर सकूं। तो जितना हो सके स्टार्टिंग स्टार्टिंग में फेमिलियर सब्जेक्ट चूज करिए। थर्ड इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये कोड आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये चीज अप्लाई करिए अपनी लाइफ में। अगर आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो ये चीज आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही आप शार्प होंगे, आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स शार्प होगी। फोर्थ इज रिलैक्स। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम, हेलो हेलो, या रिलैक्स योर सेल्फ। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि मुझे बोलना है, मैं स्पीकर हूँ, मुझे आगे जाके परफॉर्म करना है, लाइक वो। तो हम लोग उसमें क्या बहुत हड़बड़ाहट में रहते हैं। लाइक हम लोग उस चीज को एंड मोमेंट तक पढ़ते रहते हैं कि मुझे अभी जाके ये प्रेजेंट करना है, बोलना है, करना है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सेशन या हमें जो भी हमारा लाइक है इवेंट, उससे 1 घंटे पहले से ही उस चीज को अपने से दूर रख लेना है, ताकि क्या हमारा माइंड रिलैक्स कर पाएगा, और हमारा माइंड रिलैक्स करेगा ना तो हम आगे जाके अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। फिफ्थ इज नो द रूम। नो द रूम में मतलब आप जहां पे भी परफॉर्म करने वाले हो वहां पे किस तरीके की ऑडियंस आएगी, कहाँ आपका परफॉर्मेंस है, वो सब चीजों के बारे में आप जानकारी ले, आप डिटेल ले वहां से कि भाई कहाँ है, क्या है एंड ऑल। सिक्स्थ इज रीच बिफोर टाइम। जहां पर भी आपका प्रोग्राम होने वाला है आप उसमें समय से पहले पहुंच जाइए।
समय से पहले पहुंचने से क्या होगा, आप कंफर्टेबली जान पाएंगे कि मुझे जाके कहाँ परफॉर्म करना है, कहाँ खड़े रहना है, ये सब चीजें। सेवेंथ इज नो द ऑडियंस, ग्रीट मैक्सिमम ऑडियंस। ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस के साथ में हाय हेलो कीजिए, जो भी आपका है ग्रीट कीजिए। बिकॉज क्या होता है ना कि हम जिन लोगों को जानते हैं उनके सामने हम बहुत कंफर्टेबली अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को रख सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ में अपन कितने फ्रीली बात कर सकते हैं, लाइक कि अपने को पता है कि अपने को कोई जज नहीं करने वाला। अगर अपनी टंग स्लिप भी हो गई, अपन कोई वर्ड मिस भी कर गए, तो अपनी फैमिली कौन सा अपने को जज करेगी। तो वैसे ही पब्लिक स्पीकिंग में भी, जहां आप सेशन लेने वाले हैं या जहां पे आपकी पब्लिक स्पीकिंग है, जहां आप प्रेजेंटेशन लेने वाले हैं, वहां पे जाइए, वहां के लोगों के साथ में ग्रीट कीजिए, हाय हेलो कीजिए। इससे क्या होगा, आप कंफर्टेबली उनके सामने बोल पाएंगे। एट इज विजुअलाइज योर सेल्फ गिविंग योर स्पीच। अगर आप टाइम से पहले वहां पे पहुंच जाएंगे तो आप एक इमेजिन कर पाएंगे कि हम वहां पे जाके खड़े होंगे, वहां पे लाइक पोडियम रखा होगा। हम कितनी ही बार हम देखते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह जो होते हैं वो पब्लिक के बीच में आके लाइक स्पीकिंग करते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को। तो वो लोग ऐसे रेंडमली नहीं आते हैं, वो लोग प्लानिंग के साथ में आते हैं। वो पहले ही पहुंच जाते हैं, उनको पता रहता है कि ये रास्ता यहाँ पे इतना गैप छोड़ा हुआ है, यहाँ पे आके मैं खड़ा हो सकता हूँ, यहाँ पे आके मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ। तो वैसे ही हम बीइंग स्पीकर, अगर हमें भी मूवमेंट करना है आगे जाके, तो लाइक हम लोगों को पहले ही अपने आप को इमेजिन कर लेना चाहिए बिफोर द टाइम, बिफोर द प्रोग्राम। नाइन्थ इज ग्रेस व्हेन यू वॉक एंड सिट। मैंने आपको जैसे बताया कि आप किसी भी प्रोग्राम में जाते हो, जब आपका नाम अनाउंस होता है ना, तब वहां वहां के आप हीरो हीरोइन बन जाते हो। सबका फोकस आपके ऊपर होता है कि आप कैसे चल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे बैठ रहे हो। लाइक तो अगर आपको किसी ने इनवाइट किया कि आई वुड लाइक टू इनवाइट आयुषी राका, तो लाइक आपका जैसे ही हो गया है ना, तो आप जैसे ही चल के आते हो तो लोग आपको नोटिस करते हैं कि ये बंदी कैसे चल रही है, कैसे आके खड़ी हो रही है। तो आपकी वॉक में ग्रेस होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ, लाइक लोगों को लगे कि आपसे उनको पॉजिटिविटी मिले कि ये कुछ अच्छा बताने वाली है। नेक्स्ट प्लीज, प्रिपरेशन। नो एंड रिसर्च योर मटेरियल। आपको जिस भी टॉपिक के बारे में बोलना है, स्पीच देनी है या प्रेजेंट करना है, तो उसके बारे में आपको रिसर्च करना चाहिए, आपको उसके बारे में जानना चाहिए। आप रिसर्च वगैरह गूगल, एआई, बुक्स, इवन आपके बड़े जो भी जन है घर में, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो कि मेरे को ये टॉपिक मिला है, मैं इस पे क्या बोल सकती हूँ। वो भी आपको कंटेंट अच्छा खासा दे सकते हैं। तो लाइक आप कहीं से भी कंटेंट कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी अपने दिमाग से सोचना, आपके दिमाग में उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके क्या थॉट्स आ रहे हैं, वो सब चीज आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग में। अब आपके पास में सर्च किया हुआ मटेरियल है, आपके दिमाग से सोचा हुआ मटेरियल है, तो अब आपको क्या करना है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग यानी इनमें से आपको क्या चीज आपके परफॉर्मेंस में, आपके कंटेंट में डालनी है, तो वो चीज को आप सॉर्ट करेंगे। नेक्स्ट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग। मैंने सेशन स्टार्ट करते टाइम एक लाइन बोली थी कि सपने वह नहीं होते, सपने वह नहीं होते जो सोने देते हैं, सपने तो वह होते हैं जो रातों की नींदें उड़ा देते हैं। ये बेसिकली मेरा एक स्लोगन है। मैंने अपने किसी भी प्रेजेंटेशन को चालू करने से पहले ये स्लोगन यूज किया है। वैसे ही आप लोग भी अपना कोई स्लोगन या फिर अपना कोई कोट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आप ओपनिंग करें, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, इतने सारे स्पीकर्स स्पीच देके गए हैं बट इसने कुछ नया स्टार्ट किया है, तो लाइक उनको इंटरेस्ट है। तो आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग थोड़ी धमाकेदार होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पॉलिश योर पंच लाइन्स। आपको जो भी मैसेज देना है, जैसे मैंने आपको स्वच्छ भारत अभियान का एक एग्जाम्पल लिया है, तो स्वच्छ भारत अभियान में मेरे को स्वच्छ भारत को हाईलाइट करना है, तो इससे रिलेटेड जो भी लाइन होगी मैं बहुत अच्छे से पॉलिश करूंगी, डायलॉग्स बोलूंगी। एक वो है ना, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान याद रखेगा हिंदुस्तान, ये एक कोई डायलॉग है। तो ये जो ऐसा डायलॉग है, तो इसको मैं थोड़ा लाउड बोलूंगी, इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज करूंगी। तो इस तरीके से जो आपकी मेन लाइंस है उसको आपको पॉलिश करना है। नेक्स्ट इज रिहर्स। आपको इस चीज को बार बार रिहर्स करना है। आपका जो स्पीच होता है उसको आप 5 बार 6 बार प्रैक्टिस कीजिए, रिहर्स कीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई 2 बार में भी परफेक्ट हो गया, तो भी आप वो चीज नहीं सोचे, आप उसको 4 5 बार एटलीस्ट रिहर्स कीजिए। किस तरीके से रिहर्स कर सकते हैं, ये तो आप किसी फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स नहीं है, आप अनेबल मतलब नहीं हो भाई कि नहीं अवेलेबल है, तो आप कर सकते हो मिरर के साथ में। मिरर के सामने जाइए, अपने आप के साथ में प्रैक्टिस कीजिए। और मिरर
मिरर का भी अगर पॉसिबल नहीं होता है तो आजकल फोन सबके पास है, वीडियो में बार बार करके आप करिए, ताकि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे फंबल कर रहे हो, कहाँ पे आप रुक रहे हो, कहाँ पे आप आ कर रहे हो, या कहाँ पे आप अटक रहे हो, कौन सा वर्ड आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हो, आपको सब चीजें वीडियो में दिख जाएगी। तो जितना हो सके इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट प्लीज, डिलीवरिंग स्पीच। आप किसी इवेंट में चले गए, आपसे पहले और भी लोग स्पीचेस दे रहे हैं, तो आपको बैठे बैठे खुद के स्पीच पे फोकस नहीं करना है, आपको उनकी स्पीच सुननी है, उनको ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरीके से अपनी स्पीच को प्रेजेंट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको उनकी कोई क्वालिटी पसंद आए, आप उनसे ग्रैब कर ले वो, या वो कोई लाइन बार बार रिपीट कर रहे हैं और आपके स्पीच में भी सेम लाइन है, तो ऑडियंस बोर हो जाती है कि अरे यार अभी पहले वाला भी तो सेम ही चीज बोल के गया, ये भी सेम चीज बोल रहा है, शिट क्या सुनने इन लोगों को। लेकिन इस तरीके के वो लोग बना देते हैं अपने ओपिनियंस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सामने वाले ने कोई लाइन कवर कर दी है, बार बार बोल रहा है, तो आपको उसको वहां से कट कर देने का। तो लाइक लोगों को आप ऑब्जर्व कीजिए कि वो किस तरीके से अपनी स्पीचेस को रखते हैं। नेक्स्ट इज बिगिन स्लोली। जितना हो सके स्टार्ट स्लो करिए और फिर उसके बाद में अपने चीजों को हाई नोट पे लेके जाइए। कैरी क्यू कार्ड। क्यू कार्ड क्या होता है? एक छोटा सा पेपर होता है, कितने लोग होते हैं हाथ पे लिख के ले जाते हैं, पर वो सही तरीका नहीं है। क्यू कार्ड एक छोटा सा पेपर होता है जिसके ऊपर हम अपने मेन पॉइंट्स लिख देते हैं, कभी हमको नहीं याद रहते हैं तो वो होता है क्यू कार्ड, तो आप वो भी कैरी कर सकते हैं। द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग क्या होता है कि अब एक तो मैं पर्टिकुलर भाषण या स्पीच दे रही हूँ, एक कोई मैं स्टोरी बता रही हूँ, तो लोगों का क्या उस टाइम पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है अगर अपन स्टोरी टेलिंग करते हैं कि अब आगे क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, क्या हुआ होगा, वो तो उनका एक्साइटमेंट बढ़ता है। तो हमें जितना हो सके, अगर हम कहीं पे स्पीच देने जा रहे हैं और हमको कुछ चीज समझानी नहीं है, तो उसमें बीच में एक स्टोरी डाल देनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्पीक क्रिस्पली। हर एक इंसान के एक बोलने का तरीका होता है, तो उस तरीके को उनको यूज करना चाहिए। यूं नहीं जाके महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, इस तरीके की स्पीच कोई सुनना पसंद नहीं करेगा, सबको चाहिए नमक मिर्ची। लाइक आप लोग जिस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो दे वांट कि आप थोड़ा क्रिस्पली अपने अंदाज में पेश करो, ना कि ये वो पुराने वाले उसमें नहीं चाहिए किसी को भी। इग्नोर। काफी टाइम क्या होता है कि जब हम ऐसे कोई इवेंट में जाते हैं या प्रेजेंटेशन में जाते हैं, तो लोग उठ के जा रहे होते हैं, या फिर मंदे बिरयानी है। कोई हो हल्ला कर रहा होता है, या कोई शोर शराबा कर रहा होता है, तो हमें दैट टाइम पे उन सब चीजों को इग्नोर करना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारा इवेंट चल रहा होता है और बाजू में से कोई रैली जा रही होती है या फिर कुछ ऐसा, तो हमें उन सब चीजों को इग्नोर करते हुए अपने स्पीच को कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर बहुत लाउडली अगर आवाज आ रही है तो फिर हमें उस टाइम पे रुक जाना चाहिए, बट ऐसा कि मेरी आवाज आप तक पहुंच सकती है, तो हमें उस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए और उस चीज को इग्नोर करना चाहिए। कॉन्सेंट्रेट ऑन द मैसेज। काफी टाइम ऐसा होता है कि पब्लिक में से क्वेश्चंस आते हैं, या फिर मैं भी बोलते बोलते स्लिप हो गई, मेरा टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग और मैं आपको अलग ही मोटिवेट कर रही हूँ दूसरी चीजों के लिए कि सक्सेस होना चाहिए, करियर में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे मेरा टॉपिक पब्लिक स्पीकिंग है, तो मुझे पब्लिक स्पीकिंग पे ही फोकस करना चाहिए ना। तो इस तरीके से ही जो भी आपका टॉपिक हो, आप उसी पे कंसंट्रेट करो, ना कि दूसरे टॉपिक पे भटको। नेक्स्ट इज डोंट अपोलोजाइज फॉर एनी नर्वसनेस। काफी काफी टाइम क्या होता है कि लाइक हम लोग कहीं पे गए हैं और हमने कोई वर्ड गलत बोल दिया, या फिर लाइक हमसे कोई मिस्टेक हो गई, तो लाइक हम लोग उसके लिए अपोलोजाइज करने लग जाते हैं कि आई एम सॉरी, मैं ये वर्ड नहीं ये वर्ड यूज करने वाली थी। तो वो चीज हम लोगों को नहीं करनी है। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आप क्या कंटेंट प्रिपेयर करके आए हो। आप अगर अपनी नर्वसनेस शो करोगे ना, तब जाके उनको पता चलेगा कि इससे मिस्टेक हुई है। तो इस तरीके का काम भी हमें नहीं करना है कि अपोलोजाइज कर रहे हो किसी भी चीज को लेके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्लान, प्रिपेयर, पॉलिश, प्रैक्टिस एंड प्रेजेंट। अभी तक मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है। बेसिक कंसेप्ट यही है पब्लिक स्पीकिंग का कि आप पहले आप प्लान करें, फिर उसके लिए प्रिपेयर करें, फिर अपनी चीजों को पॉलिश करें, फिर उसकी प्रैक्टिस करें बार बार, फिर उसके बाद में उसको प्रेजेंट करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सम लास्ट वार्निंग्स। डोंट हरी। बेसिकली ये चीज है कि हम कहीं पे भी स्पीच देने जा रहे हैं, तो हम इतनी स्पीड में भी नहीं बोले कि सामने वाले को वो समझ ही नहीं आए। हमें बोलना है धीरे धीरे। ऐसा है कि हाँ लाइक
कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम चालू बहुत धीरे कर रहे हैं और लास्ट में जाके गाड़ी भगा रहे हैं क्योंकि हमको कंप्लीट करनी है उस चीज को, कि मेरे पास में टाइम नहीं है पर मुझे उसको कंप्लीट करना है तो मैं इतना स्पीड में बोल जाऊं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसीलिए घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं 5 बार कि टाइम मैनेजमेंट कर सकें। अगर 5 मिनट का स्पीच है तो 5 मिनट के हिसाब से मैं 5 बार प्रैक्टिस करूंगी तो ऑटोमेटिकली चीजें कवर अप हो जाएगी। और अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो मैं स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स तो लाइक धीरे धीरे चलाऊंगी और फिर लास्ट के 2 मिनट में, जैसे एग्जाम में नहीं लिखते लास्ट में कि ये क्वेश्चन रह गया फटाफट, पहले स्टार्ट करते तो इतनी सुंदर फूल जैसी राइटिंग होती है और लास्ट में जो ऐसी घास जैसी राइटिंग बना के आते हैं। हमें आता सब कुछ है पर हमारी वही है आदत स्टार्टिंग में तो सुंदर सुंदर लिखने की और लास्ट में जो घास काटने की। तो वो चीज पब्लिक स्पीकिंग में नहीं चलेगा कि स्टार्टिंग में आप लोगों ने स्लो से स्टार्ट किया और लास्ट में जाके आप बिल्कुल ऐसा कर दो। तो डोंट हरी, नहीं करना चाहिए। डोंट फंबल, हमें प्रैक्टिस करना चाहिए मोर एंड मोर कि हम ये वाले चीजें हम नहीं करें और फंबल नहीं हो गए। हम किसी भी वर्ड को लेके या किसी भी मतलब बहुत लाइंस को लेके फंबल क्रिएट नहीं करें। थर्ड इज नर्वसनेस। मैंने आपको बोला कि भाई सेशन से 1 घंटे पहले या जो भी आपका पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम का जो भी इवेंट है उससे 1 घंटे पहले अपने पेपर को साइड में रख दो, रिलैक्स रहो, चिल मारो, टेंशन नहीं लेनी, जो भी होगा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नर्वस बिल्कुल नहीं होना है कि मुझे देना है, मेरा क्या होगा, मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। डोंट अपोलोजाइज योर मिस्टेक। मैंने आपको पहले बताया कि अपनी जो भी मिस्टेक्स होती है, अगर कोई वर्ड गलत बोलने में भी आ गया या फिर कुछ भी ऐसा या कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, अगर वो अपन ने रॉन्ग दे दी और अपने को बाद में पता चला कि शिट ये नहीं था ये था, वो भी अपने को वापस करेक्ट नहीं करनी उस टाइम पे हाथों हाथ। क्योंकि क्या होता है ना, काफी टाइम लोगों ने सुना ही नहीं होता है और अपन फिर जाके अपनी पोपट खुद ही करवा देते हैं कि भाई मैंने ये बोलना था ये बोल दिया। तो इस तरह की आपको नहीं करनी है। कोई आपके पास क्वेश्चन उठाने आया कि हाँ आपने गलत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, तब अपोलोजाइज कर लो कि आई एम सॉरी, मैंने दैट टाइम पे हो सकता है मेरे से गलती से बोलने आ गया हो, ये चलेगा। बट खुद का खुद से पोल भांडा नहीं फोड़ना है। नेक्स्ट इज डोंट पॉइंट योर फिंगर एट द योर ऑडियंस। लाइक इस तरीके से बात नहीं करनी है, ये डराना धमकाना नहीं है, इस तरीके से कभी भी पॉइंट आउट किसी को भी नहीं करना है। नेक्स्ट इज ट्राई नॉट टू रिपीट योर सेल्फ। बार बार आप अपने स्पीच में एक ही लाइन रिपीट कर रहे हो तो वो चीज सही नहीं है। अगर आपको कोई मैसेज भी देना है, अब जैसे स्वच्छ भारत अभियान का मैसेज देना है तो मैं उसी मैसेज को अलग अलग वे में अगर बोलूंगी तो फिर भी एक बार चलेगा, पर एक ही लाइन को 5 बार बोलूंगी तो सामने वाला सुनने के लिए बोर हो जाएगा। नेक्स्ट इज डोंट पोज टू लॉन्ग। पोज नहीं लेना है, रुकना नहीं है, बहुत लंबा नहीं रुकना है, कंटिन्यू आपकी स्पीकिंग चलनी चाहिए। डोंट लुक डाउन, नीचे देख के कभी भी स्पीकिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन। होप आप लोगों ने कुछ नया जाना होगा मुझसे। एंड अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज 5 मिनट में एटलीस्ट अपना नाम तो बोल ही दीजिए और अपनी एज बोल दीजिए ताकि मुझे एक आइडिया हो जाएगा किस एज ग्रुप को मैंने आज टारगेट किया। गाइज एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. या प्लीज एक लिटिल इंट्रो होना चाहिए। वी हैव 6 मिनट्स और किसी को कोई क्वेरी भी हो तो आप पूछ सकते हैं। Good evening, ma'am. My name is Bhagya Biradar. यस, गुड इवनिंग। I have a question for you. Like, how do I know that I'm good at public speaking? How do I know myself that, okay, this is what I'm meant for? Maybe I'm very motivated for it. I do motivate my friends, but I speak a lot also. I mean, whenever I get some opportunity, maybe speeches or something in events or something, I have done this thing also. Anchoring also, but how do I know I might be good at public speaking one day? ओके देखो बेसिकली इसमें मैं आपको यही कहना चाहूंगी, आपको अगर पब्लिक स्पीकिंग करने से खुशी मिलती है, लाइक मैं जैसे हूँ, अगर मुझे आप रात को 12 बजे भी बोलोगे कि कंटेंट क्रिएट करना है, बोलना है नेक्स्ट डे, तो मुझे उस चीज में खुशी मिलती है, मैं कंफर्टेबली वो चीज कर सकती हूँ। तो अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करने से अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, फ्री फील होता है, कोई बर्डन नहीं, कोई मतलब जोर जबरदस्ती नहीं, तो आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हो। और नहीं, अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है कि नहीं तुझे ये करना है और आपको जोर आ रहा है कि यार क्या है यार रोज रोज यही, तो आप नहीं हो फिर उसके लिए। सो आपको अगर इसमें अगर हैप्पीनेस, आपको खुशी मिल रही है तो आप बन सकते हो और आप हो पब्लिक स्पीकर। सो या Thank you, ma'am. And I have one more question. या Yeah, like what are the consequences I might face as a first time public speaker, like limitations or problems? ओके, आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हो ये पूछना चाह रहे हो ना बेसिकली? Yes, ma'am. Yeah. ओके, फर्स्टली तो देखो पब्लिक स्पीकिंग में आप सबसे पहले तो आपका फियर आएगा कि लाइक
स्टेज पे जाके खड़े होने में आपको लाइक बहुत हेजिटेशन होगा। अब हो सकता है आप मतलब इतना हेजिटेट हो जाओ कि आप वाइब्रेट करने लग जाओ। बहुत टाइम ऐसा होता है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोगों के फेसेस देखते हो, लोग आपके ऊपर, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, सबका कंसंट्रेशन आपके ऊपर होता है, सब आपको देख रहे होते हैं और आप अकेले होते हो और आप सबको देख रहे होते हो। तो लोगों के शक्ल देख के आप डरने लग जाते हो, फिर उनसे आई कांटेक्ट करना तो दूर की बात है। तो फिर ये हेजिटेशन होना, आपकी स्पीचेस भूलना, ये सब चीजें आप फेस करते हो। तो इसके लिए मैंने आपको ये चीज बोली है कि आप मिरर प्रैक्टिस करो। मिरर में क्या होता है, आप अपनी आंखों में देखते हो, राइट? आपके सामने एक इंसान है मिरर में। मिरर प्रैक्टिस नहीं तो आपकी फैमिली के सामने आप बोलना स्टार्ट करो, 4 जनों को बिठाओ, 5 जनों को बिठाओ और उनको बोलो कि नहीं प्लीज मुझे सुनो, और उनके फेसेस को देखो। तो क्या एक वो जो हेजिटेशन होता है ना, वो थोड़ा कम पड़ेगा आपका। उसके अलावा मैंने आपको वीडियो के लिए भी सजेस्ट किया है कि आप वीडियो में भी आप देख सकते हो। आप बाहर बार बार प्रैक्टिस करो, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो, पर सेशन से 1 घंटे पहले उस चीज को छोड़ दो, क्योंकि आप लास्ट तक भी इतना हेजिटेट रहते हो तो वहां जाके फिर आपके साथ में मतलब चीजें सही नहीं होती, आप बहुत ज्यादा डर जाते हो। तो ये सारी चीजें आप फेस कर सकते हो बेसिकली, कि आप वहां पे भूल जाओ या फिर आप वहां पे धूजने लग जाओ, वाइब्रेट होने लग जाओ। तो ये सब चीजें आप फेस करोगे। और किसी की कोई क्वेरी है? ओके, प्लीज अपना अपना नाम तो बता दीजिए एटलीस्ट, और अपनी एज प्लीज। Good evening, ma'am. I'm Ananta. ओके So I have a question that is, what is the best way to deal with the mistakes or slip ups during a speech or a conversation? ओके, जब अपनी टंग स्लिप होती है तब हम लोग क्या कर सकते हैं दैट टाइम, राइट? यही क्वेश्चन है आपका? Yes, ma'am. And अगर जैसे कभी बोलते बोलते हमने कुछ और बोल दिया एंड तो उसको अपने जो कोर हम लोग जो बोल रहे हैं उसको कैसे बोल सकते हैं, लाइक उस तरह से कैसे बोल सकते हैं? ओके, देखो काफी टाइम ऐसा होता है कि हम लोग अपने टॉपिक से भटक के हम लोग कुछ और ही बात करने लग जाते हैं, फिर हमें होश आता है कि अरे यार बोलना क्या था और बोल क्या दिया। तो हमें उस टाइम पे उसको कवर अप करना पड़ता है। उस टाइम पे हम ये चीज कह सकते हैं कि मैं ये एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या नहीं, आपको समझ आ रहा है या नहीं। सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा होगा, अपन ने कुछ और बोल दिया होगा, तो हम उसको वापस रीस्टार्ट कर सकते हैं। यही चीज हो सकती है, उस चीज को संभालना। अगर हमें क्लिक हो गया कि हम बात नहीं समझा पा रहे, तो हम एक बार सामने वाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। तो सामने वाला बोलेगा कि यस यस कैरी ऑन, तो हमें उस चीज को संभाल लेना है। और वो बोलेगा नहीं आ रहा है, तो भी हमें उस चीज को वापस रीस्टार्ट करके वापस संभालना है। यही चीज हो सकती है। Thank you, ma'am. Thank you so much. या एनीवन एल्स? काफी टाइम मेरे साथ में होता है, मेरी टंग स्लिप होती है, बिकॉज मैं ना राजस्थानी हूँ, तो मेरा क्या टंग बहुत ज्यादा हैवी है। तो मैं कंटिन्यूअसली अगर लेती हूँ, अभी दिन में भी मेरा एक सेशन था कहीं पे, तो मैं कंटिन्यूअसली बोले जा रही हूँ बोले जा रही हूँ बोले जा रही हूँ, फिर थोड़ी बहुत सेशन की इसकी प्रैक्टिस करी, तो मेरा भी काफी टाइम टंग स्लिप होता है। बट ठीक है, उस चीज को लेट इट भी करके अपना जो मेन जो पॉइंट्स है वो सबके सामने रखना, मेरा यही है। अभी हम लोग कितनी बार ऐसे होता है कि 16-16 घंटे तक हमें कंटिन्यूअसली बोलना पड़ता है। जब हमारे जैसे मैं जिस फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ, हमें वो जहाँ भेजते हैं वहां पे ऐसा होता है कि 8 घंटे की ट्रेनिंग सुबह होती है और 8 घंटे की ट्रेनिंग शाम को होती है। तो आप कंटिन्यूअसली इतना नहीं बोल सकते हो, और उसके ऊपर से मैं राजस्थानी, मेरी टंग इतनी हैवी है कि आप कंटिन्यूअसली मुझे बुला रहे हो तो मेरे से भी नहीं होता है। तो काफी टाइम होता है कि टंग स्लिप होती है, बट हमको उस चीज को अवॉइड करते हुए उसको वापस कवर अप कर देना है। तो सामने वाले को इतना नहीं फील होता है कि भाई हाँ ये सही नहीं बोल रही है या ऐसा। सो लेट इट बी। किसी का कुछ और क्वेश्चन है? Myself, GD Garg. I'm retired person, 72 years old. 72 years old. Okay. I have served for 37 years in public sector undertaking, BHL Hardwar and HL Lucknow. Okay. And I used to take the lectures for 6 hours, continuous 6 hours. I have a very big audience and mostly engineers. And it was for a long time, many years I have taken the lectures. I feel if language problem is there, suppose I have to take a lecture from in South area where the language problem is there. They know Tamil, Telugu, Kannada or English. So what should be done in that case? सर एक्चुअली ये सीन सेम मेरे साथ में भी रहता है। एक्चुअली अभी मुझे भी एक जगह से कोलकाता से ऑफर था, एंड मुझे बंगाली नहीं आती है बेसिकली।
तो मैंने उनको फिर यही कहा कि या तो फिर आप इंग्लिश में आप एडजस्ट करवा सकते हैं, तो मैं आने के लिए तैयार हूँ, या फिर हिंदी जो मदर लैंग्वेज है हम लोगों की, तो मैं उसमें लेने के लिए कंफर्टेबल हूँ। बाकी बंगाली मुझे नहीं आती है, एंड मैं पर्टिकुलर एक लेक्चर के लिए बंगाली सीखना एंड करना, सो वो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था। तो मैंने उनको बस यही रिक्वेस्ट किया कि अगर इंग्लिश में हो सकता है तो फिर भी मैं एक बार के लिए मैं कंफर्टेबल हूँ, बट प्रॉपर बंगाली में लेना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। सो सर ये रीज़न तो मेरे साथ में भी है, तो इसमें मैं कुछ आपको नहीं बोल सकती, और आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। आई एम सो हैप्पी कि आपने ज्वाइन किया। You are from Rajasthan. यस My, सर, uh, राजस्थान। uh, Dr. Rubal Agrawal, IS is a Metro MD in Mumbai. ओके She's IS from Rajasthan cadre. ओके Rubal Agrawal. So she was in Maharashtra, and she used to talk in Maharashtrian very fluently. I Okay. attended is one of the session, Okay. and there were so many district officers sitting in their conference. So she was talking very nicely with those people in Maharashtrian, या but she learned Maharashtrian there. ओके So it is better to learn that language and then become a speaker in that area, I think. या सर बेसिकली मुझे पहले राजस्थानी भी नहीं आती थी, मैं राजस्थान से हूँ, बट मेरा जो थोड़ा एजुकेशन वगैरह यहाँ से भी नहीं मतलब हुआ है, मुझे इतना राजस्थानी भी पहले इतना फ्लुएंटली नहीं आती थी। पर जैसे जैसे मुझे सेशंस मिलते गए, मैं जैसे लोगों के साथ में इंटरेक्शन करने लगी, तो मैंने धीरे धीरे मारवाड़ी भी सीख ली, जो राजस्थानी जो बेसिकली हमारी लैंग्वेज है। तो मारवाड़ी मुझे आती है। ओके हाँ, मुझे नहीं आती थी। मैंने धीरे धीरे लोगों के बीच में जब जाना स्टार्ट किया, तो मैंने घर पे इस चीज को बोलना स्टार्ट किया। मेरे घर वालों ने हमेशा मेरे साथ में हिंदी में ही बात करी है, तो उन्होंने कभी ओके, मारवाड़ी स्टार्ट नहीं करी थी। फिर मैंने जब सेशंस लेना स्टार्ट किया, ऐसे लोगों के बीच में जाना स्टार्ट किया, तो मैंने घर पे भी बोल दिया कि थोड़ा टाइम मेरे से मारवाड़ी में बात करो। और मारवाड़ी में भी सर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है, मेवाड़ी या अलग होती है, मारवाड़ी अलग होती है, दो तीन और होती है। तो मेरे को हर चीज मिक्स मिक्स में आ गई है, लाइक मम्मी अलग बोलती है, पापा अलग बोलते हैं, तो लाइक इस तरीके से। बट फिर भी मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा माहौल मिल गया ना सीखने का, ओके, ओके, तो या ओके, थैंक्स मैडम। एनीवन एल्स, कोई और बोलना चाहेगा प्लीज? कोई जज करने वाला नहीं है, प्लीज अगर कोई बोलना चाहे तो आप ना अपना नाम और अपनी एज ही बता दो। Hi, ma'am. I am Karishma. ओके I want to know that how did you get started in public speaking? ओके सो बेसिकली मैं जैन हूँ, तो हम लोगों को जैन। प्लेटफॉर्म बचपन में ही सर्व कर दिया जाता है। ज्ञानशाला करके एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हमें पब्लिक स्पीकिंग, डांसिंग, ड्रामा, ये सब चीजें सिखाई जाती है। तो मुझे बचपन से ही ड्रामा करने का बहुत शौक था, नाटक में पार्टिसिपेट करना, एक्टिंग करना बेसिकली जिसको बोलते हैं। तो मैं यही सोचती थी मैं बड़ी होके एक्टर बनूंगी। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हमें रियलिटी पता चलने लग जाती है कि एक्टिंग एक्टिंग अपने लिए नहीं है, अपने लिए पढ़ाई है। तो कॉलेज में थोड़ा बहुत एक्टिव थी, मिस फ्रेशर वगैरह बनी करी, तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हुआ मेरा कि भाई हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ पब्लिक स्पीकिंग में भी। उसके बाद में प्रेजेंटेशन वगैरह होता था क्लासरूम्स में, तो मतलब सर का भी यही था कि तुम ही करोगी, तो वहां से भी मुझे थोड़ा सा उनका भी एप्रिसिएशन मिलता, वो लोग मुझे पुश करते थे। फिर उसके बाद में जैसे मतलब स्टूडेंट्स वगैरह के बीच में जाके फ्री में पढ़ाना करना, जो आंगनबाड़ीज होती है, तो इन ऐसी जगह पे जाके वहाँ पे पढ़ाना, इन सब से थोड़ा सा लाइक मेरे को और कॉन्फिडेंस आया कि मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ। तो मैंने ऐसे फ्री में पढ़ाना भी स्टार्ट किया। उसके बाद में ऐसे पब्लिक स्पीकिंग के कोर्सेज मैंने फाइंड किए, तो मुझे एक बहुत अच्छा कोर्स मिला, तो जिसमें मैंने सबसे पहले कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर का 7 दिन का वर्कशॉप लेके वहां से एक सर्टिफिकेट प्राप्त किया। वहां पे मैं टॉप 2 में थी, सेकंड पोजीशन पे मैं आई। हम 35 स्पीकर्स थे टोटल। तो फर्स्ट डे मेरा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि हमेशा से क्या, एक तो प्रैक्टिस की आदत बहुत थी, रैंडम बोलने की आदत कभी नहीं थी, और एक देख के बोलने की आदत बहुत थी। तो वहां पे तो बिना देखे आपको बोलना पड़ता था।
तो फर्स्ट डे से 7 डे मेरी जर्नी बहुत हार्ड भी रही और बहुत अच्छी भी रही, मेरे लिए बहुत अच्छी रही। तो मैं बिना देखे बोलने लग गई थी, तो वहां पे जाके मैं स्पीकर बनी। उसके बाद में इसका जो ट्रेनर होता है वो मतलब लोगों को जाके पब्लिक स्पीकिंग सिखाता है। तो जो ट्रेनर वहां से आए थे उन लोगों सबने बोला कि तुम में ट्रेनर बनने की क्वालिटी है, तुम एक बार ज्वाइन करना। तो फिर वहां की 15 डेज की वर्कशॉप थी, तो मैंने वो वर्कशॉप अटेंड करी। तो उसमें ऐसा होता था कि हम लोगों को रात को भी सोने को नहीं मिलता था, मतलब ऐसा कि आपको 2 घंटे या 3 घंटे सोने को मिल रहा है, अब आपको उसमें नहाना है तो नहाइए, सोना है तो सोइए, खाना है तो खाइए। बाकी होल होल डे हमारे लेक्चर और नाइट में हमें असाइनमेंट्स दिए जाते थे। तो इस तरह की हार्ड 15 डेज की ट्रेनिंग करके मैं ट्रेनर बन गई। ट्रेनर बनने के बाद में उन्होंने हमें 7-8 असाइनमेंट दिए कि 7 से 8 तुम्हें असाइनमेंट करना है। तो वो असाइनमेंट मैंने पूरे किए, 15 असाइनमेंट मेरे उसमें पूरे हो गए। मतलब आगे से ऑफर्स आते थे कि मैम आप यहाँ पे आके सेशन लीजिए, हमारे स्कूल में आइए, हमारे कॉलेज में आइए। कोई मेडिकल प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वो बोलते हैं कि हमारे नर्स स्टाफ्स वगैरह को लाइक आके सेशन जो भी आपका है वो लीजिए, क्योंकि अगर किसी हॉस्पिटल को पता चला कि मैंने सेशन वहां पे लिया है तो उसका कॉम्पिटिटिव जो हॉस्पिटल होता है तो वो बोलता है कि हमारे यहाँ पे भी आओ। तो इस तरीके के बहुत सारे सीन हो गए थे। कैफेज में, रेस्टोरेंट्स में वेटर्स तक के सेशन लिए हैं कि भाई किस तरीके से आपके कैफे को आप ग्रो कर सकते हो, तो उसके लिए अलग अलग टॉपिक्स वगैरह। तो इस तरीके से करते 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 25 सेशंस मैंने लास्ट कंप्लीट कर लिए। अब और आते हैं तो अब क्या लाइक अभी थोड़ा बीच में सीन थोड़ा कुछ अलग चल गया था, तो मैंने अभी इन दिनों सेशंस नहीं लिए। बट अब मैं वापस सेशन लेने बीकानेर जाऊंगी, यहाँ से मारवाड़। वहां पर मेरी 16 आवर्स की वापस वर्कशॉप है। तो इस तरीके से मैं धीरे 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 पब्लिक स्पीकिंग में आ गई, और अब मेरे को यही करना बहुत पसंद आता है। जहां पे भी सेशन मिलता है मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, भले 1 घंटे का हो, भले 2 घंटे का हो, भले फ्री हो, भले पेड हो, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मैं उसके लिए वो कोई ऐसा नहीं कि नहीं मुझे पैसे ही चाहिए, नहीं, फ्री होता है तो मैं फ्री भी कर लेती हूँ। और एक और चीज है, शिक्षा से रिलेटेड जो भी होता है स्टूडेंट की एजुकेशन से रिलेटेड, उसके लिए मैं कभी भी चार्जेस नहीं करती। तो यही है मेरी जर्नी पूरी। या Very nice, ma'am. Thank you. Yeah. So thank you so much for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you, ma'am. On behalf of the organizing committee, I would like to sincerely thank you, ma'am, for our outstanding speaker today. We had the chance to hear a fascinating and thought-provoking conversation with you about today's session. Through her remarkable ability to convey information, she left us with insightful discoveries and motivational concepts. Her engaging lecture enthralled us and motivated us to study more. We appreciate the effort and time they put into organizing this educational platform.